Hello and welcome back to Short and Pro. I am John. I hope you all are fine. In today's video, I'll provide you four dictations. The first dictation is of 298 words, and this dictation would be mixed matter dictation. The speed for Sam will be 60 words per minute, and it's meant for stenotypes examination. The second dictation is of 325 of words. It's a general newspaper dictation. Speed for Sam would be 65 words per minute. It is meant for stenotypes examination. Third dictation comprises of 360 words. Legal dictation है ये, and the speed for Sam would be 70 words per minute. Junior skilled stenographer examination के लिए. The last dictation comprises of 403 words. It's a legal dictation. Speed would be 80 words per minute, and it's meant for senior skilled stenographer. Also, I will share you the keywords, their outlines, which will be इन दिस डिक्टेशन. जो हमारे टफ वर्ड्स होंगे कुछ उनकी आपको आउटलाइन इसी वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हम हर दिन 7:30 को लाइव डिक्टेशंस प्रोवाइड करते हैं. 4 डिक्टेशंस होते हैं सेम इसी पैटर्न से बने हुए. और अगर आपको ये ऑन स्क्रीन टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वीडियो. सो इस डिक्टेशन में नेमिंग वर्ड्स होंगे, कुछ कंट्रीज के नेम है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए. गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द डिक्टेशन. द डिक्टेशन स्टार्ट्स आफ्टर 5 seconds. Start. Amidst relentless monsoon rainfall across northern India, the government of India has once again issued a humanitarian flood warning to Pakistan. Stop. The advisory was relayed through diplomatic channels, distinct from any obligations under the Indus Waters Treaty. Stop. The move comes as river levels rise alarmingly in Jammu and Kashmir, with several dams reaching critical capacity. Stop. Though diplomatic relations between the two nations remain tense, Indian officials stated that the warning was extended purely on humanitarian grounds, aimed at mitigating potential loss of life and damage to infrastructure downstream in Pakistan. Stop. This act reflects a moment of regional responsibility amidst a broader climate of political distrust. Stop. Reports indicate that at least 60 people have died in recent floods across the region, with rescue operations continuing. Stop. The gesture has been acknowledged cautiously by Pakistani authorities, who are preparing for possible evacuations in flood-prone districts of Punjab and Sindh. Stop. Eid, traditionally a period of jubilation and commerce, was marked this time by a palpable sense of apprehension, with shopkeepers reporting a 95% drop in garment sales during the festival. Stop.
Official data from the Directorate of Economics and Statistics confirms a sharp slowdown in the territory sector, with growth in trade halving to 5.8% in 2023 to 24 from 11% the previous year, an alarming contraction that has translated into layoffs and evaporating consumer confidence. Stop. Sections 370 and 35A of the Indian Constitution were abrogated, thereby bringing Jammu, Kashmir and Ladakh under the umbrella of uniform federal rights and laws. Stop. The move established one constitution, one national flag, one prime minister, ended the dual capital tradition, saving rupees 400 crore by unifying the capital and extended official status to languages such as Kashmiri, Dogri, Hindi, Urdu and English across the Union Territory. Stop. Forests in Kashmir teem with biodiversity, where rare herbs, elusive snow leopards, and ancient trees coexist in fragile harmony. Stop. End of dictation. आई होप आप लोगों ने ये डिक्टेशन अच्छे से लिखा होगा और इस डिक्टेशन में स्पीड बिल्कुल 60 वर्ड्स पर मिनट था और आर यू रेडी टू राइट डाउन द सेकेंड डिक्टेशन फॉर टुडे? जो हमारी दूसरी डिक्टेशन होगी वो 325 ऑफ वर्ड्स का होगा, 65 वर्ड्स पर मिनट इसकी स्पीड रहेगी। ये एक जनरल न्यूज़पेपर डिक्टेशन है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। Get yourself ready for the dictation. The dictation starts after 5 seconds. Start. In a significant step towards enhancing digital governance and data security, the administration of Jammu and Kashmir has introduced a comprehensive ban on the use of pen drives, certain mobile applications, and third-party software within official government systems. Stop. The directive applies across the civil secretariat offices in both Jammu and Srinagar, and further extends to all district deputy commissioner offices. Stop. According to official sources, the use of portable storage devices such as USB drives, as well as popular tools like WhatsApp and I love PDF, has been expressly prohibited on all government computers and networks. Stop. The administration cites concerns over data leaks, unauthorized access, and cyber vulnerabilities as the key reasons
behind the directive stop. In lieu of these tools, the government has now mandated the use of GoDrive, a newly launched secure storage and file sharing platform designed specifically for internal use by government departments. Stop. Officials confirmed that GoDrive will serve as the exclusive medium for handling, transmitting, and storing official documents across departments. Stop. A senior officer from the Information Technology Department remarked that this decision was made in alignment with broader national cybersecurity objectives. Stop. The digital infrastructure used by government functionaries must reflect the highest standards of security. Stop. The use of non-regulated third-party software and open platforms puts sensitive data at undue risk, he stated. Stop. The move has been broadly welcomed by cyber security experts, who view it as a necessary intervention in the age of rising digital threats and cyber espionage. Stop. However, a section of government employees has expressed concerns regarding the ease of use and reliability of the newly introduced platform. Stop. Departments have been instructed to undertake training sessions to familiarize employees with GoDrive and to ensure seamless transition. Stop. Compliance monitoring will also be conducted regularly to prevent unauthorized use of banned devices or applications. Stop. This setup marks a pivotal shift in how the Union Territory approaches data integrity, privacy, and official communication, reinforcing the principle that in public administration, security must precede convenience. Stop. End of dictation. आई होप ये डिक्टेशन आप लोगों ने बड़े अच्छे से लिखा होगा एंड आई होप कि मेरी ऑडियो में कोई इशू नहीं आ रहा है आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन नाउ आई वांट यू टू बी रेडी फॉर द अनदर डिक्टेशन जो आज की थर्ड डिक्टेशन है वो होंगे 360 वर्ड्स के 70 वर्ड्स इसकी स्पीड रहेगी ठीक है ये लीगल डिक्टेशन है इसमें कुछ लीगल मैक्सिम्स का इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा सा न्यूमेरिक भी इसमें है तो इसके लिए आप तैयार हो जाओ get yourself ready for the dictation. The dictation starts after 5 seconds. Start. This court has carefully examined the material placed on record, including the writ petition, counter affidavit, rejoinder, and all annexures appended thereto. Stop. The petitioner contends that the selection process conducted by the respondent authority is vitiated by serious procedural irregularities, thereby infringing the fundamental rights guaranteed
under Articles 14 and 16 of the Constitution of India. Stop. It is the specific case of the petitioner that the eligibility criteria, as initially notified in Advertisement Notification Number 3 of 2023, dated 12th March 2023, were subsequently modified without any public notice, justification, or approval from the competent authority. Stop. The petitioner alleges that such post facto alterations have not only disadvantaged otherwise eligible candidates but have also conferred undue benefit upon a limited group of applicants, rendering the entire process arbitrary, malified, and discriminatory in nature. Stop. The learned counsel for the petitioner further submits that despite fulfilling all requisite qualifications and eligibility conditions, the petitioner was excluded from the shortlist without issuance of any reasoned communication or explanation. Stop. It is submitted that the respondent authority has acted in contravention of the principles of natural justice and fair play by taking a decision that adversely affects the petitioner's rights without affording an opportunity of being heard. Stop. Per contra, learned counsel appearing on behalf of the respondents submits that the entire selection process was conducted strictly in accordance with the statutory rules, guidelines, and the recruitment policy issued by the competent government department. Stop. It is contended that the petitioner has failed to avail the appropriate departmental remedies and has approached this court with unclean hands, suppressing material facts relevant to the case. Stop. Upon consideration of the submissions advanced and documents placed before this court, it is of the considered view that the matter raises serious triable issues warranting adjudication. Stop. Accordingly, issue notes to the respondents, returnable within a period of 4 weeks from the date of receipt of this order. Stop. In the interim, the respondents are directed not to finalize or publish the final selection list. Stop. However, other preparatory processes may continue and shall remain subject to the final outcome of this writ petition. Stop. List the matter for further consideration on 30th September 2025. Stop. End of dictation. आई होप ये डिक्टेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। इस डिक्टेशन की स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट था, तो लीगल डिक्टेशन था इसमें। तो इस डिक्टेशन में जो भी हमारे जो ये बोल्ड वर्ड्स होंगे या इसके अलावा भी जो हमारे की वर्ड्स हैं उनकी आउटलाइन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा हमारी लास्ट डिक्टेशन के बाद। तो ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा उन आउटलाइंस के बारे में भी। तो मीनवाइल अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और अगर आप हमारे इस डिक्टेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
I hope you all are ready for writing down the last dictation for the day. The last dictation will start after 5 seconds. Start. Both the remand and bail applications are taken up conjointly. Stop. The application seeking remand has been preferred on the premise that the accused stands charged with non-bailable offense, that investigation is presently ongoing and custodial interrogation is allegedly necessary for its proper advancement. Stop. The application for bail has been filed principally on the grounds that the police station Chadura, Ultra Vires, its lawful authority, has falsely implicated the accused in a fabricated and frivolous case, further, the accused has been cooperating fully with the investigating agency and there exists no compelling justification for the grant of police remand. Stop. The application for remand is vitiated by its failure to disclose the grounds necessitating custodial interrogation, as mandated by the ratio decidendi of the Honorable Supreme Court of India in Arnesh Kumar versus State of Bihar and another, wherein it was laid down that arrest is not to be effected as a matter of course, absent demonstrable and recorded reasons justifying such a major. Stop. Upon perusal of the said judgment, it is tried law that the police are under a legal obligation to refrain from making automatic arrests, unless satisfied that custodial interrogation is indispensable and such satisfaction is duly recorded in the case diary. Stop. It is apposite to note that the Honorable Supreme Court has reiterated the aforesaid mandate in a subsequent pronouncement in Social Action Forum for Manav Adhikar versus Union of India, thereby expressing grave concern regarding the continued misuse of arrest powers in contravention of the law laid down. Stop. It is a well settled proposition that the liberty of the subject cannot be curtailed merely upon unproven allegations by the prosecution. Stop. Every person is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt in a court of law. Stop. The purpose of pre-trial detention is to secure the presence of the accused at the time of trial. Stop. If the said purpose can be achieved by less restrictive means, then the law must lean in favor of liberty, and bail ought not to be withheld arbitrarily. Stop. In light of the foregoing, the applicant is held entitled to the concession of bail, subject to the furnishing of a surety in the sum of rupees 20,000 and a
personal bond in the like amount, comma, upon the stipulated conditions. Stop. In view of the grant of bail, comma, the application seeking remand is rendered infractious. Stop. Both applications are accordingly disposed of, comma, and upon due completion, comma, be consigned to the record. Stop. End of dictation. आई होप ये डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस डिक्टेशन की स्पीड एग्जैक्टली 80 वर्ड्स पर मिनट था। और अगर आपको इन डिक्टेशन के रिलेटेड कोई सवाल होगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे आज के कुछ वर्ड्स थे उनको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, ताकि आपको इनका थोड़ा आइडिया मिल जाए, ठीक है। पहला जो हमारा वर्ड था वो था एमेडिस्ट रिलेंटलेस। एमेडिस्ट का हमने यहाँ पे एम को हॉलो करके रखा है, इसमें डी हमने इंसर्ट कर दिया है, तो फिर एस टी लूप डाला है। फिर रिलेंटलेस का हमने आर लिखा है, फिर एल को हमने डाउनवर्ड लिखा है यहाँ पे, और उसको हॉलो करके हमने इसमें टी इंसर्ट कर दिया है। फिर लेस हमने फुल लिखा है, ठीक है। या आप चाहे तो आप रिलेंटलेस का हम यहाँ पे एल अपवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पे इसको जो ये एल है इसमें टी आपको इंसर्ट करना है। फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए आपने कैसे लिखा है, जी लिखा है, फिर एन डी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। फिर हमारा पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन, पाकिस्तान था, हमें सीधा लिखना है पाकिस्तान, और एक वर्ड था ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन के लिए हमने एक टिक एच इस्तेमाल की है, एम डाला है, एन, फिर टी आर और एन, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्लिगेशंस था, सिंपल है, आपको बी एल डालना है, फिर गे स्ट्रोक डालना है, फिर उसको में शेन का हुक डालना है, और उस शेन के लास्ट में आपको सर्कल डालना है। फिर हमारा डिप्लोमेटिक चैनल्स था, डिप्लोमेटिक चैनल्स में आपको डी अक्रॉस द लाइन है, पी एल इस्तेमाल करना है, और एम को टी हॉलो कर देना है, इसमें इंसर्ट कर देना है। फिर हमने इसमें के यूज करना है डिप्लोमेटिक। फिर चैनल्स के बारे में हमने यहाँ पे च लिखा है, और एन को एल हुक डाल के फिर लास्ट में एस सर्कल का इस्तेमाल किया है चैनल्स। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने यहाँ पे एन को डी इसमें इंसर्ट कर दिया है हॉलो करके, फिर एस और वे का इस्तेमाल किया है, फिर टी आर, और ट्रीटी आप चाहे तो अलग लिख सकते हैं या इसके साथ ही। फिर हमारा यहाँ पे एक वर्ड था अलार्मिंग। अलार्मिंग देखिए कैसे लिखना है, फुल लिखना है, ठीक है, अबोव द लाइन एल आर और एम, फिर इंग, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए आप जे एंड के इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारा क्रिटिकल कैपेसिटी, ये फुल लिखना है, के आर इस्तेमाल करके, टी एंड फिर के एल हुक डाल के कैपेसिटी आपको फुल लिखना है। फिर हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेम, जैसे डी क्रॉस द लाइन लिखा, पी एल, एम को टी हॉलो करके फिर के डाल के फिर रिलेशंस फुल लिखना है। फिर हमारा मिटिगेटिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे मिटिगेटिंग में भी आपको एम अबोव द लाइन लिखना है, लेकिन टी अक्रॉस द लाइन होना चाहिए उसमें। फिर जी टी हमने हॉलो किया है, फिर इंग डाला है, और पोटेंशियल हमने यहाँ पे फुल इस्तेमाल किया है। देन हमारा लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ लाइफ को हमने एल लिखा है, फिर सर्कल का इस्तेमाल किया है, लॉस, और ये ऑफिस में स्किप कर देना है, फिर लाइफ लिखना है इसके साथ, लॉस ऑफ लाइफ। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन स्ट्रीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने एन कर देना है अबोव द लाइन, फिर एफ आर हुक करना है, बट यू शुड बी अक्रॉस द लाइन। फिर स्ट्रक्चर के लिए आपको एस और टी आर, फिर के को डबलिंग कर देना है, इसमें चेयर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। फिर डाउन स्ट्रीम के लिए हमने डी अक्रॉस द लाइन लिखा है, एन डाल के फिर इसमें एस टी आर डाल के फिर हमने एम लिखा है, तो ये डाउन स्ट्रीम बन जाता है। उसके बाद जो हमारा रीजनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अबोव द लाइन लिखना है। रीजनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑन द लाइन भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग कैपेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ आर और एस सर्कल एंड बी के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये कंट्रैक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फुल लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप फुल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बट फॉर माई एडवाइस यू नीड टू राइट दी एडवांस्ड आउटलाइंस, ठीक है। अगर आपको ये आउटलाइंस अच्छी लगते हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना ही, अगर आप बेहतर लिखते हैं तो वही फॉलो करो। फिर एक्नॉलेज इट कॉशियसली,
एक्नॉलेज के लिए आपने क्या करना है, अबूतलैन के डालना है, फिर एन और जे डी को हॉलो कर देना है, ये एक्नॉलेज होता है। कॉशियसली के, श और एस सर्कल, फिर एल डाला है हमने यहाँ पे। फिर हमारा पाकिस्तानी अथॉरिटीज था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए आपको पाकिस्तानी फुल लिखना है और अथॉरिटीज के लिए आपको इंटरसेक्ट कर देना है टीएच सर्कल के साथ। फिर हमारा एक्सक्यूएशंस था। एक्सक्यूएशंस को आपने फुल लिखना है, अबूदलैन के एस डाला है, फिर से के, फिर वेशंस फुल, ठीक है। पंजाब सिंध, पंजाब आप फुल लिख सकते हैं लेकिन सिंध को आप फॉलो कर सकते हैं, बट रिमेंबर इसके नीचे आपको 2 पैरेलल लाइंस डालने हैं। फिर हमारा जुबिलिएशन था। जुबिलेशन यहाँ पे देखो हमने फुल लिखा है जुबिलेशन का, इसको फुल लिखना है आपको। उसके बाद हमारा ट्रेडिशनली था। ट्रेडिशनली देखो यहाँ पे टी आर और डी लिखा है हमने, फिर शन हुक का इस्तेमाल करके फिर एल ने हमने फुल लिखना है ट्रेडिशनली। फिर एप्रीहेंशन यहाँ पे देखो पी आर का इस्तेमाल करके फिर शन हुक, तो यहाँ पे मैंने एक टिक डाली है, उसके साथ डॉट डाला है, तो ये हमारा एप्रीहेंशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको आपने डी आर लिखा, ठीक है, अक्रॉस द लाइन, फिर इकोनॉमिक्स फुल लिखना है बट ये इंटरसेक्ट करके होना चाहिए। फिर स्टैटिक्स के लिए आपने एस टी डाल के फिर नीचे से फिर से एस टी डाल के फिर के एस को आपने इंसर्ट कर देना है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा हाल्विंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो हाल्विंग के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है एल का, और इसमें एच 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 डाल के एल डालना है, फिर ये फिर वी और एन जी डाला है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपने क्या करना है, इंडियन अबव द लाइन लिखना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन इसके बीच में अक्रॉस द लाइन लिखना है, ठीक है, ये इस देखो। उसके बाद हमारा एब्रोगेटेड है। एब्रोगेटेड आपको फुल लिखना है, एब्रोगेटेड। फिर हमारा जो यहाँ पे था एब्रोगेटेड के बाद हमने हाँ जम्मू एंड कश्मीर का लिखा है देखो, या चाहे आप एब्रोगेटेड ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों जो आप में आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है यहाँ पे, देखो जम्मू कश्मीर ऐसे जे एंड के डाला है, फिर लद्दाख के लिए एल और अम्ब्रेला आपको फुल इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारा फेडरल राइट्स था। फेडरल राइट्स के लिए आपको एफ डी कर देना है फॉलो करके, फिर फेडरल आल एल डालना है, फिर राइट्स के लिए आपको आर एन टी एस डालना है इसी में, ठीक है, एंड लाज आप फुल लिख सकते हो। उसके बाद वन कॉन्स्टिट्यूशन फुल लिखा, वन फुल लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंटरसेक्ट करके नीचे डाल दिया। फिर वन नेशनल फुल, उसके बाद फ्लैग, फ्लैग भी आपको फुल ही लिखना है। उसके बाद हमारी लैंग्वेजिंग थी यहाँ पे कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी, ये भी आपको फुल लिखना है, बट रिमेंबर इसके नीचे आपको 2 पैरेलल लाइंस डाल देने हैं। फिर हमारा उर्दू, उर्दू भी अक्रॉस द लाइन लिखना है, और इंग्लिश भी आप यहाँ पे अबोध लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक डिजिटल गवर्नेंस था, एक वर्ड डिजिटल के लिए आपको डी अक्रॉस द लाइन लिखना है, जी पी और टी एल डाल के डिजिटल, फिर गवर्नेंस आप ये फुल लिख सकते हो। उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको डी डालना है, फिर एम और एन एस टी आर डाल के शन डालना है, फिर जे के आप फुल लिख सकते हो। फिर कंप्रहेंसिव पेन ड्राइव थी। कंप्रहेंसिव के लिए आपको कॉम के लिए एक डॉट डालना है, फी फिर लिखना है हमें पी आर एन और एस वी, ठीक है। और एच के लिए यहाँ पे मैंने डैश डाला है और डॉट वोवेल प्लेस किया है, इससे मुझे पता चलता है कि इसमें बीच में एच है, ठीक है। फिर पेन ड्राइव आप फुल लिख सकते हो। फिर हमारा सिविल सेक्रेटरीट ऑफिस था, सिविल अक्रॉस द लाइन लिखना है, सेक्रेटरीट एस के आर इस्तेमाल करके फिर टी लिखा है, ऑफिस अबोव द लाइन डबल एस लास्ट में डाल के। उसके बाद हमारा जम्मू एंड श्रीनगर, आप चाहे तो ये अलग अलग लिख सकते हो, या जम्मू के लिए सिर्फ जे लिख सकते हो और श्रीनगर के लिए सिर्फ एस, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर हमारा डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस था, ये भी फुल लिखना है, डी अबोव द लाइन पी एंड टी। फिर कमिश्नर के लिए आपको एम शेन फिर आर डालना है डाउनवर्ड, फिर ऑफिस आपको फुल लिखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप अनऑथराइज्ड एक्सेस, व्हाट्सएप आप यहाँ पे फॉलो करके लिख सकते हो। अनऑथराइज्ड के लिए आप एन और टी एच फिर एस डी वाला डाल के फिर यहाँ पे जो हमारा एक्सेस है वो आप फुल लिख सकते हो। उसके बाद हमारा साइबर वल्नरेबिलिटीज था। साइबर वल्नरेबिलिटीज आपको फुल लिखना है, और वल्नरेबिलिटीज के लिए आपने क्या करना है,
वी एल डाल के फिर एन आर डाला, ठीक है, ये होता है वल्नर है। फिर बिलिटीज के लिए आपको सिर्फ बी एस डालना है, बट इट शुड बी इंटरसेक्टेड, तो ये वल्नरेबिलिटीज लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे फुल लिखने की जरूरत नहीं है। और पहले तो वो एक लंबी आउटलाइन बन जाएगी और आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। देन हमारा यहाँ पे गो ड्राइव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। गो ड्राइव में आपको जी डालना है, फिर ड्राइव अबुदलाइन। फिर हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हो, जी डाल सकते हो, फिर डिपार्टमेंट्स को इंटरसेक्ट कर सकते हो, या आप चाहे जी डाल के फिर डिपार्टमेंट्स फुल लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद हमारा एक्सक्लूसिव मीडियम ट्रांसमिटिंग था, तो उसमें यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव ऐसे लिख सकते हो, के एस डाल के फिर इसमें के एल आ जाता है, फिर से फिर एस वी, फिर मीडियम के लिए एम डी को फॉलो करके फिर एम दूसरा फुल लिखना है। ट्रांसमिटिंग के लिए आपको टी आर डाल के फिर एन एस सर्कल, फिर एम को फॉलो करके फिर लास्ट में इंक के लिए आपको डॉट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन आपको पता है अबुदलाइन लिखा जाता है, और टेक्नोलॉजी के लिए मैंने इसमें टी किया है इस्तेमाल, और डिपार्टमेंट के लिए डी। लेकिन पहला वाला जो टी है वो इंटरसेक्ट करके होना चाहिए, और डी आप बाहर से भी लिख सकते हो, बट इसमें थिन और थिकनेस का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद सीनियर ऑफिसर के लिए आप एस एन आर करके फिर ऑफिसर फुल लिख सकते हो उसको इंटरसेक्ट करके। फिर हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी है, ये देखो नेशनल साइबर सिक्योरिटी आपको फुल लिखना है, देन ऑब्जेक्टिव भी आप फुल लिख सकते हो यहाँ पे। देन हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो आ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमारा गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट के लिए आप जी इस्तेमाल कर सकते हो, और फंक्शनरी आप फुल यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमारा स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी के आपने एस टी एन डाल के हॉलो करके फिर आर और डी एस हॉलो करके ऑफ सिक्योरिटी फुल लिख सकते हो। फिर हमारा नॉन रेगुलेटेड एक वर्ड था, नॉन रेगुलेटेड, यहाँ पे देखो आप नॉन लिख के फिर रेगुलेटेड आपने फुल लिखना है। फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी देखो आप में एस एफ टी करके फिर वेयर को फुल लिखना है। फिर नेसेसरी इंटरवेंशन, ये देखो नेसेसरी फिर इंटरवेंशन, यहाँ पे हमने एन को डबलिंग करके फिर वेंशन लिखा है, वी और एन को फिर शन डाल के। फिर हमारा साइबर एस्पोनेज, ये फुल लिखना है, इसमें हल नहीं कर सकते आप, फेनराइज भी देखिए ये भी हमने फुल ही लिखा है। फिर हमारा मॉनिटरिंग था, मॉनिटरिंग ये रहा, एंड प्रीवेंट में भी आपको पी आर करके फिर वी एन टी फॉलो कर देना है। अनऑथराइज्ड के लिए आपको एन और फिर टी एच को एस डी लूप डाल के ये आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर हमारा यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी आपको क्या करना है, यू डाल के फिर टी अक्रॉस द लाइन लिख सकते हो, और ये बन जाता है हमारा यूनियन टेरिटरी न। फिर हमारा ये इंटीग्रिटी है, वो हमने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रिटी, और फिर हमारा प्राइवेसी, ठीक है। डेटा यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, तो इसको आप ये कंसिडर नहीं करना, आप डेटा ठीक से लिख लेना। फिर हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए हमने यहाँ पे एफ हुक और फिर शेल अबोध लाइन डाला है। फिर कम्युनिकेशन के लिए आपको सिर्फ कीशन लिखना है, ठीक है, और लेकिन इसको इसके साथ ही लिखना है, एडजेसेंट टू ऑफिशियल लिखना है, तभी आपको इसमें कम्युनिकेशन के लिए फिर की ये कॉम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा उसके बाद जो कॉन्वेनेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देखो ये कॉन्वेनेंस के लिए आपको के डॉट ये डॉट करना है, फिर वेनेंस फुल लिखना है, पब्लिक के लिए पी भी लिखना है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप फुल लिख सकते हो। फिर हमारा री एनफोर्सिंग, ये देखो री एनफोर्सिंग भी आपको फुल लिखना है, रेटिफिकेशन आपको फॉलो करके लिखना है, ठीक है। काउंटर एफिडेविट में आपको के लिखना है, एन को डबल करके, फिर एफिडेविट को भी आपको दोनों तरफ से हॉलो करके, फिर रिजॉइंडर में क्या करना है, आर लिखा, जॉइंडर आपको डबल करके लिखना है। फिर हमारा एनेक्चर्स था, यहाँ पे एनेक्चर्स में आपको एन के और एस आर एस डाल देना है। अपेंडेड में आपको फिर पी एन और डी को फॉलो कर देना है, डिड। फिर रेस्पोंडेंट अथॉरिटी में आप रेस्पोंडेंट लिख सकते हो, फिर अथॉरिटी के लिए आप टी एच लिखना है। फिर हमारा विशिएटेड ये फुल लिखना है, टी डी इसमें लास्ट में फॉलो कर देना है। प्रोसीजरल में पी आर और एस डी आर फिर एल लिखा है। इरेगुलरिटीज के लिए आपने आर कर देना है अक्रॉस द लाइन, फिर जी और एल एन टी एस फुल लिखना है, ठीक है, इरेगुलरिटीज। उसके बाद हमारा इन्फ्रिंजिंग था, यहाँ पे हमने लिखा है अक्रॉस द लाइन इन्फ्रिंजिंग फंडामेंटल राइट्स, आपने ऑलरेडी सीखा है कैसे लिखना है, आप देख सकते हो। फिर हमारा गारंटेड ये फुल लिखना है, लेकिन लास्ट वाला इसमें टी डी को फॉलो कर देना है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको एस टीशन लिखना है, फिर इसमें इंडिया के लिए आपको एन बाइसेक्ट करके लिखना है।
फिर हमारा एलिजिबिलिटी के लिए आपको एल और जे लिखना है, फिर एबिलिटी के लिए आप बी इंटरसेक्ट करके लिख सकते हो। फिर हमारा क्राइटेरिया ये आपने फुल लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट अपने आप एडी कर दिया है, बोल रहा है, फिर वी आर करके एस सर्कल फिर डाल के और मेट में इसमें एम हॉलो ये ओमिट कर देना, इसमें एन टी लिखना होता है। नोटिफिकेशन के लिए एन टी को फॉलो कर दिया, एफ के फिर शेन हुक डाल दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये फुल लिखना है, यहाँ पे 2 बार लिखा है तो आपको जो अच्छी लगे वो फॉलो कर देना। उसके बाद हमारा यहाँ पे पब्लिक नोट्स था, पब्लिक फुल लिखा है पीबी, फिर नोट्स ऐसे लिखना है। जस्टिफिकेशन भी आप देखिए कैसे लिखा हमने। कंप्यूटर के लिए आपको डॉट डाल के फिर पेटेंट लिखना है, अथॉरिटी के लिए टीएच। पोस्ट फैक्टो हमने ऑलरेडी समझाया दिया है यहाँ पे, ये पोस्ट फैक्टो के लिए आपको पोस्ट लिख के फिर एक्टो लिखना है, एफ इसमें ओमिट कर देना है। फिर हमारा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज के लिए आपको अबाउट अक्रॉस द लाइन डिस लिखना है, एडवांटेज के लिए आप डी और वी हुक डाल के फिर जे लिख सकते हो। कन्फर्ट के लिए आपने डार्ट लिखना है और एफ आर डी को फॉलो कर देना है। फिर हमारा रेंडरिंग, रेंडरिंग आपने आर और एन डी फॉलो करके फिर आर एन जी फुल लिखा। फिर आर्बिट्ररी ये कंट्रैक्शन है, आपको पता है। मैलिफाइड भी आपको फुल लिखना है, लास्ट एफ डी में फॉलो कर देना। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, ये आपको ऑलरेडी सीखा आपने। लर्न के लिए एल, काउंसिल के लिए के और पेटिशनर इसी में लाना है, फॉर द इसमें स्किप कर देना है। क्वालिफिकेशंस के लिए हमने के एल कर दिया है, एल फिर एफ केशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए एल और जे इस्तेमाल किया है, एबिलिटी के लिए बी, कंडीशंस इसके साथ ही। फिर हमारा कम्युनिकेशन के लिए आपने डॉट करना है इस्तेमाल, फिर केशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन के लिए के, एस और पी एल इसी में आ जाता है। एंड फिर नेशन। फिर कंट्रावेंशन, कंट्रावेंशन में अपने डॉट डालना है, फिर करना है टी आर और वी हुक, फिर एन और शेन हुक। उसके बाद प्रिंसिपल्स के लिए पी आर एस कर देना है अपने अक्रॉस द लाइन। फिर नेचुरल जस्टिस के लिए अपने नेचुरल एन को डबल करके फिर एल लिखा और जे उसके साथ। फिर एस टी फिर में एस टी के साथ लास्ट वाला एस लिखना है एडिशनल, ठीक है। पर कंट्रा यहाँ पे सीखिए कैसे लिखा जाता है। पर लिखा, कंट्रा के लिए डॉट किया इस्तेमाल, फिर टी आर लिखा। लर्न काउंसिल अलग अलग, अपियरिंग लिखा अलग। फिर हमारा अपियरिंग के बाद सिलेक्शन प्रोसेस भी आप सीख सकते हो। इन अकॉर्डेंस विद द एक साथ लिखना है, ये भी कंट्रैक्शन है। स्टैट्यूटरी रूल्स ये भी आप सीखिए, फुल लिखना है। गाइडलाइंस के लिए हमने ये भी फुल लिखा है, जी को हमने डी इसमें हॉलो करके फिर लाइंस फुल लिखा है। उसके बाद हमारा रिक्रूटमेंट में आर लिखा, के आर करके फिर एम एन टी को भी हॉलो करके लिखना है। पॉलिसी आप फुल लिख सकते हो, और आप चाहे तो ये रिक्रूट में आप पी डाल सकते हो जिससे आपको पता चले ये पॉलिसी है। तो यहाँ पे फिर हमारा कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो हमने देखो कैसे लिखा है। कॉम्पिटेंट के लिए आपने पेटेंट लिखना है, इसके ऊपर डॉट डालना है। फिर कॉम्पिटेंट हो गया, गवर्नमेंट के लिए जी डाला, डिपार्टमेंट के लिए डी डाला, ठीक है। और या चाहे तो आप डिपार्टमेंट अलग भी लिख सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट ये देखो फुल लिखा है, फिर डिपार्टमेंटल यहाँ पे भी फुल लिखा है। उसके बाद हमारा सप्रेसिंग एस पी आर लिखा, फिर एस और इंक डाल के। मटेरियल के लिए हमने एम को डबलिंग करके फिर एल लिखा है। और फैक्ट्स के लिए हमने छोटा सा के को फॉलो करके लेकिन अक्रॉस द लाइन लिखते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन लिखना था। यहाँ पे अपॉन कॉन्सेंट्रेशन में आपको क्या करना है, ऑन द लाइन पी लिखा, इसमें एन एस डाल के सो एस्ट्रेशन डाल लिख देना है, ठीक है। इसमें हॉलो बहुत होता है। वारंटिंग के लिए अपने डब्ल्यू लिखना है और एन टी को फॉलो करके इंक डाल के फिर एडजुडिकेशन अलग लिख सकते हो। इंट्रिम लिखा, इंट्रिम के लिए अपने एन करना है डबल इस्तेमाल। फिर फाइनलाइज के लिए आपने करना है एफ और एनालाइज एन एस डाल के पब्लिकेशन अक्रॉस द लाइन लिखना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक प्रिपरेटरी प्रोसेसेस लिस्ट मैटर, लिस्ट द मैटर था, वो अलग अलग हमने लिखा है। लिस्ट द मैटर आप एक साथ लिख सकते हो। उसके बाद हमारा फर्दर कंसंट्रेशन है, इसमें फर्दर लिखा, फिर कंसंट्रेशन इसी में आपको इंसर्ट कर देना है। देन कॉन्जेंटली ये भी आप सीखिए कैसे लिखना है। बाकी सारा नॉर्मल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको नॉन डाल के फिर बेलेबल लिखना है बस, फिर ऑफेंसेस आपने अलग लिखना है। इन्वेस्टिगेशन ऐसे लिखा जाता है, आप सीखिए, ये देखिए। उसके बाद हमारा प्रेजेंटली ये ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद कस्टोडियल इंट्रोगेशन ऑलमोस्ट ये फुल लिखना है। उसके बाद हमारा एलिजिटली नेसेसरी भी लिखा है इसमें। प्रॉपर एडवांसमेंट अल्ट्रा वायरस हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है।
फैब्रिकेटेड भी देखिए कैसे लिखा जाता है, फ्रिवलेस भी हमने यहाँ पे FRS के लेकिन इसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करके केसेसफुल लिखा है। फॉल्सली में हमने क्या किया, ऑलमोस्ट डाउनलोड L 2 बार इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इससे ईजी हो जाता है और आउटलाइन में भी काफ़ी क्लियरिटी दिखती है। फिर हमारा इम्प्लीकेटेड था, इम्प्लीकेटेड में भी M लिखा, PL और K फिर TD को फॉलो करके। फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में हमने इन्वेस्टिगेटिंग लिखा है, फिर एजेंसी के लिए हमने जियो डाला है, ठीक है। जस्टिफिकेशन फुल है, पुलिस रिमांड भी फुल है। नेसेसिटेटिंग रेशियो डिसाइडेंडी में अपने क्या करना है, R डाला है, फिर डिसाइडेंडी फुल फुल लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा मैंडेट वो भी ऑलमोस्ट फुल ही है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो एक साथ लिखना है, ऑनरेबल फिर SPR फिर कोर्ट के लिए उसमें उसी में इंसर्ट कर देना है और इंडिया के लिए आपने ND डाला है। उसके बाद हमारा अर्नेश, अर्नेश में हमने R किया है डाउनवर्ड, फिर N हुक, फिर श अर्नेश, कुमार के लिए K और MR करते हैं इस्तेमाल। फिर वर्सेस ऐसे लिखना है, स्टेट ऑफ लिखा है, फिर लिखा हमने बिहार, बिहार में B फिर H डाल के फिर R अनदर को डबलिंग करके लिखना है। उसके बाद हमारा डिमोनस्ट्रेबल जस्टिफाइंग राइट लॉ वो भी देखिए कैसे लिखा है, फिर जजमेंट हमने ऐसे लिखा है और ऑटोमेटिक भी हमें इसमें M को अपने फॉलो कर देना है। फिर हमारी जो लास्ट थे कुछ वर्ड्स वो थे अरेस्टस इंडिस्पेंसेबल सेटिस्फेक्शन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो ऊपर से आपने सीखा है। सब्सिक्वेंट प्रोनाउंसमेंट, सब्सिक्वेंट प्रोनाउंसमेंट आपने यहाँ पे PR लिखा है, फिर N फिर NS फिर सेंट लिखना है, ठीक है। प्रोनाउंसमेंट इसमें M को फॉलो कर देना है। उसके बाद हमारा सोशल एक्शन फॉरम फुल लिखना है, मानव अधिकार ये भी अपने फुल लिखना है, यूनियन ऑफ इंडिया आप एक साथ लिख सकते हो। उसके बाद हमारा एक्सप्रेसिंग था, कॉन्ट्रावेंशन था, कॉन्ट्रावेंशन के लिए हमने TR लिखा है, V और एंशन डाला है। सेटेड के लिए हॉलो कर देना है। प्रपोजिशन देखो ये भी हॉलो ये अक्रॉस द लाइन लिखना है। उसके बाद हमारा अनप्रूवन एक साथ लिखना है, एलिगेशन यहाँ पे आप डाउनवर्ड L इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारा रीजनेबल डाउट है, ये डाउट्स में आपको D और TS लिखना है, एक हॉलो कर देना है। फिर कोर्ट ऑफ लॉ हमने 2 बार लिखा है, आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हो या एक साथ लिख सकते हो। रेस्ट्रिक्टिव आर्बिट्रेरली ये भी हमने अलग अलग लिखा है। कंसेशन ऑफ बेल, कंसेशन के लिए आपने डॉट डालना है, सेशन लिखना है, ऑफ बेल अलग अलग लिखना है। फिर हमारा हमारा स्टिपुलेटेड कंडीशंस था, इसमें स्टिपुलेट के लिए हमने ST लूप डाला है, फिर P L and TD, देन कंडीशंस के लिए हमने डॉट फिर डेशंस लिखा है। इनफ्रेक्शियस हमने फुल लिखना है इसमें। कंसर्न के लिए आपने साइनेड लिखना है, लेकिन इसके बीच ऊपर आपको डॉट डालना है। टू द रिकॉर्ड्स छोड़ना है, रिकॉर्ड्स लिख सकते हो। तो आई होप ये आउटलाइंस आपको अच्छी लगी होगी और जो हमारी आज की डिक्टेशन थी ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस डिक्टेशन के लिए रिगार्डिंग कोई भी सवाल होगा, आप चाहे हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा मैं आपको वो टेलीग्राम पे क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। I wish you all the very best for your future. I hope you will get a better success this time, and I believe that you are getting benefits from my videos. तो आज का जो ये वीडियो था इट्स रिकॉर्डेड, तो ये लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड है बिकॉज आपको पता है कि नेटवर्क का मसला हुआ है पिछले 1-2 दिनों से। सो आई थॉट कि मैं ये रिकॉर्डेड बनाऊं तो आपकी जो ये रिदम है प्रैक्टिस करने की छूट ना जाए, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे इसको पॉज करके सुन सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको पता है हमारी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड recommending it to your steno friends, and also if you can please hit a like button, and please I respect your comments, so make sure to comment the video as well. And thank you so much for watching this video. All the very best.